وہ واپسی پر دھن کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آیا تھا۔ پورا راستہ اس کا ذہن اسی ادھڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پستول آخر کہاں سے نکالا تھا۔ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ جس وقت وہ وضو کے لیے منہ پاؤں دھو رہی تھی، اس وقت وہ پستول اس کی پنڈل کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور اسے دیکھ لیتا۔ بعد میں نماز پڑھنے کے دوران بھی وہ بغور اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا تھا۔ پستول تب بھی اس کی پنڈل کے ساتھ بندھا ہوا نہیں تھا۔ وہ برگر کھانے اور چائے پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور وہ کچھ دیر بعد گاڑی میں آیا تھا۔ وہ یقیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہی ہوگا، وہ اندازے لگاتا رہا۔ وہ جس وقت اپنے گھر پہنچا اس کا موڈ آف تھا۔ گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف بلایا۔ رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا تم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، بلکہ میں رات کو کہیں نہیں گیا تھا، سمجھ میں آیا؟ اس نے دھمکانہ انداز میں کہا۔ جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ چوکیدار نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا پھرتا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اطمینان کے ساتھ سو گیا۔ اس کا اس دن کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس نے اچانک کسی کو اپنے کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجاتے سنا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ واقعی بج رہا تھا۔ اس نے موندی ہوئی نظروں سے وال کلاک کو دیکھا جو 4 بجا رہا تھا۔ اپنے آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دروازہ بجانے والے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے کے عالم میں اس نے چڑچڑاتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ باہر ملازم کھڑا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح دروازہ بجا رہے ہو؟ دروازہ توڑنا چاہتے ہو تم؟ وہ دروازہ کھولتے ہی ملازم پر چلائے۔ سالار صاحب باہر پولیس کھڑی ہے، ملازم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار کا غصہ اور نیند 1 منٹ میں غائب ہو گئے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں وہ پولیس کے وہاں آ جانے کی وجہ جان گیا تھا اور اسے امامہ کے گھر والوں کی اس مستعدی پر حیرت ہوئی۔ آخر چند گھنٹوں میں سیدھے اس تک کیسے پہنچ گئے؟ کس لیے آئی ہے پولیس؟ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ پوچھا۔ یہ تو جی پتہ نہیں، وہ بس کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے، مگر چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا۔ اس نے ان سے کہہ دیا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، مگر ان کے پاس آپ کے وارنٹ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں اندر آنے نہیں دیا گیا تو زبردستی اندر آ جائیں گے اور تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ چوکیدار نے واقعی بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے یقیناً یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس رات والی لڑکی کے معاملے میں ہی تفتیش کے لیے وہاں آئی تھی، اس لیے اس نے نہ تو پولیس کو اندر آنے دیا نہ ہی یہ بتایا کہ سالار گھر پر موجود ہے۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، سالار نے ملازم سے کہا اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ کسی عام شہری کا گھر ہوتا تو پولیس شاید دیواریں پھلانگ کر بھی اندر موجود ہوتی، مگر اس وقت وارنٹ ہونے کے باوجود اس گھر کا سائز اور جس علاقے میں وہ واقع تھا انہیں خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اگر امامہ کا خاندان بھی اثر و رسوخ والا نہیں ہوتا تو اس وقت پولیس اس سیکٹر میں آنے اور خاص طور پر وارنٹ کے ساتھ آنے کی جرات ہی نہ کرتی، مگر اس وقت پولیس کے سامنے آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورت تھی۔ سالار نے بیڈ روم کے اندر آتے ہی فون اٹھا کر کراچی سکندر عثمان کو فون کیا۔ بابا ایک چھوٹا سا پرابلم ہو گیا ہے، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ یہاں ہمارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے، ان کے پاس میری گرفتاری کے وارنٹ ہے۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ کیوں؟ یہ تو نہیں پتا پاپا، میں سو رہا تھا، ملازم نے جگا کر مجھے بتایا۔ کیا میں جا کر پولیس والوں سے پوچھوں کہ وہ کس سلسلے میں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ سالار نے بڑی فرمانبرداری اور معصومیت کے ساتھ سکندر عثمان سے پوچھا۔ نہیں، باہر نکلنے یا پولیس کو اندر بلوانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کمرے میں ہی رہو، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں رنگ کرتا ہوں۔ سکندر عثمان نے عجلت کے عالم میں موبائل بند کر دیا۔ سالار نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کچھ دیر بعد پولیس وہاں نہیں ہوگی اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ 10-15 منٹ کے بعد ملازم نے آ کر اسے پولیس کے جانے کے بارے میں بتایا۔ ملازم ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا جب سکندر نے دوبارہ کال کی تھی۔ پولیس چلی گئی ہے، سکندر نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں چلی گئی ہے، سالار نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ اب تو میری بات ٹھیک طرح سنو، میں اور تمہاری ممی رات کو کراچی سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، تم تب تک گھر سے کہیں نہیں نکلو گے، سنو تم نے؟ سالار کو ان کی بات کرنے کا انداز بہت عجیب سا لگا۔ انہوں نے بہت اکڑ انداز میں اور صدمیری سے اس سے بات کی تھی۔ سن لیا؟ وہ دوسری طرف سے فون بند کر چکے تھے۔ سالار ابھی فون بند نہیں کر رہا تھا جب اس کی نظر اپنے کمرے کے کارپیٹ پر پڑی۔ وہاں جوتے کے نشانات تھے اور اس نے دیکھا کہ ملازم بھی قدرے حیرانی کے عالم میں ان نشانات کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی سے قطار کی صورت میں بڑھ رہے تھے۔ جوتے ان کے نشانات کو صاف کر دو، سالار نے دھمکانہ انداز میں کہا۔ ملازم کمرے سے باہر چلا گیا۔ سالار اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا اور اس نے وہ سلائڈنگ ونڈو پوری طرح کھول دی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، جوتے کے وہ مٹی والے نشانات باہر برآمدے میں بھی موجود تھے۔ امامہ اپنی کیاریوں سے گزر کر دیوار پھلانگ کر ان کی کیاریوں میں کودی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جوتے کے تلے مٹی سے بھر گئے تھے اور اس کی وجہ سے وہ مٹی کم اور کیچڑ زیادہ تھی اور اس کے برآمدے کے سفید ماربل پر وہ نشانات بالکل ایک قطار کی صورت میں آ رہے تھے۔
वो एक गहरी सांस लेता हुआ अंदर आ गया। मुलाजिम कमरे में निशानात को साफ करने में मसरूफ था। बाहर बरामदे में भी पैरों के कुछ निशानात थे, इन्हें भी साफ कर देना। सालार ने इससे कहा, ये किसके निशान हैं? मुलाजिम ज्यादा देर अपना तजस्सुस पर काबू नहीं रख सका। मेरे, सालार ने अखड़ लहजे में कहा। वो रात को खाना खाने में मसरूफ था जब सिकंदर उस्मान और तैयबा आ गए। इन दोनों के चेहरे सते हुए थे। सालार इत्मीनान से खाना खाता रहा। वो दोनों इसे मुखातिब किए बगैर इसके पास से गुजर कर चले गए थे। खाना खत्म करके मेरे कमरे में आओ, सिकंदर उस्मान ने जाते जाते इससे कहा था। सालार ने जवाब देने के बजाय फ्रूट राइफल अपनी प्लेट में निकाल ली। 15 मिनट बाद जब वो इनके कमरे में गया तो इसने सिकंदर को कमरे में टहलते हुए पाया, जबकि तैयबा फिक्रमंदी के आलम में सोफे पर बैठी हुई थी। पापा, आपने बुलवाया था? सालार ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। बैठो, फिर तुम्हें बताता हूँ क्यों बुलाया है। सिकंदर उस्मान ने इसे देखते ही टहलना बंद कर दिया। वो बड़े इत्मीनान से तैयबा के बराबर में बैठ गया। अमामा कहाँ है? सिकंदर ने लम्हे ज़ाया किए बगैर पूछा। कौन अमामा? इसकी जगह कोई और होता तो इसके चेहरे पर थोड़ी बहुत घबराहट जरूर होती, मगर वो अपने नाम का एक ही था। सिकंदर का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हारी बहन? वो गुर्राए। मेरी बहन का नाम अनीता है पापा। सालार के इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई। तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आखिर तुम मुझे और कितनी बार कितने तरीके से जलील कराओगे? इस बार सिकंदर उस्मान दूसरी तरह सोफे पर बैठ गए। आप क्या कह रहे हैं पापा? मेरी समझ में नहीं आ रहा, सालार ने हैरानी से कहा। हालांकि तुम्हारी समझ में अब सब कुछ आ रहा है, उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा। देखो, मुझे आराम से बता दो कि अमामा कहाँ है। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। पापा, आप किस अमामा की बात कर रहे हैं? मैं किसी अमामा को नहीं जानता, मैं वसीम की बहन की बात कर रहा हूँ। सिकंदर उस्मान इस बार गुर्राए। वसीम की बहन? वो कुछ सोच में पड़ गया। अच्छा, याद आया, वो जिसने मुझे ट्रीटमेंट दिया था लास्ट ईयर। हाँ, वही। अब चूंकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, इसलिए मुझे ये भी बता दो कि वो कहाँ है। पापा, वो अपने घर में होगी या मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में? मेरा इससे क्या ताल्लुक? इसने हैरानी से सिकंदर से कहा। इसके बाप ने तुम्हारे खिलाफ अपनी बेटी के अगवा का केस करवा दिया है। मेरे खिलाफ? आई डोंट बिलीव इट। मेरा अमामा से क्या ताल्लुक है? इसने पुरसुकून लहजे और बेतासुर चेहरे के साथ कहा। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक है। पापा, मैं इसको जानता तक नहीं हूँ, एक दो बार के अलावा मैं इससे मिला तक नहीं। फिर इसके अगवा से मेरा क्या ताल्लुक? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अगवा हो गई है। सालार, अब ये एक्टिंग बंद करो, मुझे बता दो कि वो बच्ची कहाँ है। मैंने हाशिम मुबीन से वादा किया है कि मैं इनकी बेटी इनको इन तक पहुंचाऊंगा, तो आप अपना वादा पूरा करें। अगर इनकी बेटी को इन तक पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर पहुंचाइए, मगर मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? इस बार सालार ने नागवारी से कहा। देखो सालार, तुम्हारी और अमामा के दरमियान अगर किसी भी किस्म की अंडरस्टैंडिंग है तो हम इस मामले को हल कर लेंगे। मैं खुद इसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तुम फिलहाल ये बता दो कि वो कहाँ है। सिकंदर उस्मान ने इस बार अपने लबो लहजे में तब्दीली लाते हुए कहा। फॉर गॉड सेक पापा, स्टॉप इट। कौन सी अंडरस्टैंडिंग? कैसी शादी? मेरी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग होती तो मैं इससे अगवा करूंगा और मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा अमामा जैसी लड़की के साथ। वो मेरी टाइप है। इस बार सालार ने बुलंद आवाज में कहा। तो फिर वो तुम पर इसके अगवा का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? ये आप इनसे पूछें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसने इसी नागवारी से जवाब दिया। आज हाशिम मुबीन कह रहे हैं, कल को कोई और आकर कहेगा और आप फिर मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देंगे। मैंने आपको बताया मैं सो रहा था जब पुलिस आकर बाहर खड़ी हो गई और अब आप आ गए और आते ही मुझे तो ये तक नहीं पता कि वसीम की बहन अगवा हुई है या नहीं। आखिर वो लोग मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्या सबूत है इनके पास? मैंने इनकी बेटी को अगवा किया है और बिलफर्ज मैंने अगवा किया भी है, तो क्या मैं यहाँ अपने घर बैठा रहूंगा? मुझे इस वक्त इस लड़की के साथ होना चाहिए। सालार तलखी से बोलता रहा। मुझे एसपी से तुम्हारी केस की तफसीलात का पता चला है। फिर मैंने कराची से हाशिम मुबीन को फ़ोन किया, वो मुझसे बात करने पर तैयार नहीं था। मुझे इस बात से बात करने के लिए मिन्नतें करनी पड़ी। इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, इसकी बेटी रात को गायब हुई है और तुम भी रात को गए हो और सुबह आए हो। तो पापा, इसमें अगवा कहाँ से आ गया? पहली बात तो यह है कि मैं रात को कहीं नहीं गया, और दूसरी बात यह है कि अगवा करने के लिए किसी के घर जाकर लड़की को ज़बरदस्ती ले जाना ज़रूरी है, और मैं किसी के घर नहीं गया। हाशिम मुबीन के चौकीदार ने रात को तुम्हें जाते और सुबह आते देखा है। इसका चौकीदार झूठा है, सालार ने बुलंद आवाज में कहा। मेरे चौकीदार ने तुम्हें रात को एक लड़की को कार में ले जाते देखा है, सिकंदर ने दांत पीसते हुए कहा। सालार चंद लम्हे कुछ बोल न सका। सिकंदर यकीनन घर आते ही चौकीदार से बात कर चुके थे। वो मेरी एक फ्रेंड थी जिसे मैं घर छोड़ने गया था। इसने तैयबा को देखते हुए कहा। कौन है वो फ्रेंड? इसका नाम और पता बताओ। सॉरी पापा, मैं नहीं बता सका। इट्स पर्सनल। यहाँ इस्लामाबाद छोड़ने गए थे? हाँ। तुम इसे लाहौर छोड़कर आए हो? एसपी ने मुझे खुद बताया है। तुम चार नाकों से गुजरते हुए चारों
पर तुम्हारा नंबर नोट किया गया था। रास्ते में तुमने एक सर्विस स्टेशन पर रोककर गाड़ी चेक करवाई है, इस लड़की के साथ वहाँ खाना खाया है। सिकंदर ने इसके सर्विस स्टेशन और होटल का नाम बताते हुए कहा। सालार कुछ देर सिकंदर को देखता रहा, मगर इसने कुछ भी नहीं कहा। एसपी ने मुझे ये सब कुछ खुद बताया। इसने अभी हाशिम मोबिन को ये सब कुछ नहीं बताया। इसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं और खामोशी के साथ लड़की को वापस पहुंचा दूं, या इसके घर वालों को इस लड़की का पता बता दूं, ताकि ये मामला खामोशी के किसी मसले के बगैर ख़त्म हो जाए। मगर वो कब तक हाशिम मोबिन को नहीं बताएगा। वो दोस्ती का लिहाज करके सब कुछ छुपा भी गया, तब भी हाशिम मोबिन के और बहुत सारे ज़राए हैं। इसे वहाँ से पता चल जाएगा और फिर तुम्हारी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। सिकंदर ने इसे डराने की कोशिश की। मुतासिर हुए बगैर इन्हें देखता रहा। अब झूठ बोलना छोड़ दो और मुझे बता दो कि वो लड़की कहाँ है। वो लड़की रेड लाइट एरिया में है। सिकंदर को इसकी बात पर करंट लगा। व्हाट? मैं इसे वहाँ से लाया था, वहीं छोड़ आया हूँ। वो सफ़ेद चेहरे के साथ सालार को देखते रहे। मगर वो अमामा नहीं थी। मैं परसों लाहौर गया हुआ था, वहाँ से मैं रात गुजारने के लिए इस लड़की को लाया था। आज मैं इसे वहाँ छोड़ आया। मेरे पास इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं है, मगर आप मेरे साथ राहो चलें, मैं आपको इस लड़की के पास ले जाता हूँ, या बता देता हूँ आप खुद पुलिस को कहें कि वो इस लड़की से तस्दीक कर ले। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। तैयबा और सिकंदर बेयकीनी से सलार को देख रहे थे, जबकि वो बड़े मुतमईन अंदाज में खिड़कियों से बाहर देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इस तरह की हरकत कर सकते हो। तुम ऐसी जगह जा सकते हो। एक लंबी खामोशी के बाद सिकंदर ने कहा, आई एम सॉरी पापा, मगर मैं जाता हूँ। और इस बात का अमामा के भाई वसीम को भी पता है। मैं कई बार वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता रहा हूँ और वसीम भी ये बात जानता है। आप इससे पूछ लें। एड्रेस दो इस लड़की का। वो कुछ देर बाद हो रहा है, मैं अपने कमरे से लेकर आता हूँ, इसने उठते हुए कहा। अपने कमरे में आकर इसने मोबाइल उठाया और लाहौर में रहने वाले अपने एक दोस्त को फ़ोन करने लगा। इसे सारी सूरत-ए-हाल बताने के बाद इसने कहा, अकमल, मैं अपने पापा को रेड लाइट एरिया के इस घर का पता दे रहा हूँ जहाँ हम जाते रहते थे। तुम वहाँ किसी भी ऐसी लड़की को जो मुझे जानती हो, इसको बारे में बता दो। मैं अभी कुछ देर तक तुम्हें दोबारा फ़ोन करता हूँ। वो कहते हुए तेज़ी से एक चिट पर एक एड्रेस लिखने लगा और फिर इसे लेकर सिकंदर के कमरे में आ गया। इसने चिट सिकंदर के सामने कर दी, जिसे उन्होंने तकरीबन छीन लिया। एक नज़र इस चिट पर डालकर उन्होंने खशमगीन नज़रों से इसे देखा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो इत्मीनान से अंदाज में वहाँ से चला गया। अपने कमरे में आकर इसने अकमल को दोबारा फ़ोन किया। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचकर फ़ोन करता हूँ, अकमल ने इससे कहा। वो बेड पर लेटकर इसका इंतज़ार करने लगा। 15 मिनट के बाद अकमल ने इसे फ़ोन किया। सालार, मैंने सनिया को तैयार किया है, इसे मैंने सारा मामला समझा दिया है, अकमल ने इसे बताया। वो सनिया को जानता था। अकमल, अब तुम एक कागज़ और पेंसिल लो और मैं कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, इसे लिखो, इसने अकमल से कहा और फिर इसे अपने घर के बैरूनी मंजर और लोकेशन की तफसीलात लिखवाने लगा। ये क्या? मैंने देखा हुआ है तुम्हारा घर, अकमल ने कुछ हैरानी से इससे पूछा। तुमने देखा है? सनिया ने तो नहीं देखा। ये सारी तफसीलात मैं सनिया के लिए लिखवा रहा हूँ। अगर पुलिस इसके पास आई तो ये सारी चीज़ें इससे पूछेगी, सिर्फ ये तस्दीक करने के लिए क्या वो वाकई मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में थी। वो गाड़ी में चुप कर आई थी और रात के वक्त आई थी, इसलिए इसे ज़्यादा तफसील का नहीं पता। मगर घर के अंदर दाखिल होते हुए दाएं और बाएं तरफ लॉन है। मेरी गाड़ी का रंग सुर्ख था, स्पोर्ट्स कार, और नंबर वो इसे लिखवाता गया। हम पुलिस के 4 नाकों से गुजरे थे। इसने सफ़ेद शलवार कमीज, सफ़ेद चादर और स्याह स्वेटर पहना हुआ था। रास्ते में हम इस नाम के सर्विस स्टेशन पर भी रुके थे। सालार ने नाम बताया, सर्विस स्टेशन और होटल। वो धुन की वजह से सही तरह देख नहीं सके। सालार यक के बाद दिगरे हर चीज़ की तफसील लिखवाता गया। सर्विस स्टेशन पर गाड़ी ठीक करने वाले आदमी से लेकर चाय बनाने वाले लड़के के हुलिये और इस कमरे की तफसीलात, उन्होंने क्या खाया था, सालार और लड़के के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी, इसने छोटी छोटी तफसीलात इसे लिखवाई दी। इसने अपने घर के पोर्च से लेकर अपने कमरे तक के रास्ते और अपने कमरे तक का हुलिया भी इसे नोट करवा दिया था। सनिया से कहो ये सब कुछ रट ले। इसने अकमल को आखिरी हिदायत दी और फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करके वो बेड पर बैठा भी कुछ सोच रहा था जब सिकंदर उस्मान अचानक दरवाज़ा खोलकर इसके कमरे में आए। इस लड़की का क्या नाम है? सनिया, सालार ने बेख्तियार कहा। सिकंदर उस्मान मजीद कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गए। इनके जाने के बाद सालार को इस वकील का ख्याल है जिसके ज़रिए उन्होंने हाशिम मोबिन अहमद से रब्ता किया था। इस वकील को हेल्प करने वाला भी हसन ही था और सालार सिकंदर के नाम से वो वकील भी वाकिफ़ नहीं था। मगर सालार के लिए काबिल तशवीश बात इसमें हसन का इन्वॉल्व होना था। हाशिम मोबिन अहमद इस वकील से हसन और हसन से इस तक बहुत आसानी से पहुंच सकते थे। इसने अगला फ़ोन हसन को किया और हसन को सारे मामले की नौइयत से आगाह किया। मैं तुम्हें पहले ही इस सब से मना कर रहा था, इसने छूटते ही सालार से कहा। मैं वसीम और इसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इनके असर और रसूख से भी बखूबी वाकिफ़ हूँ। वो बोलता जा रहा था। सालार ने कुछ उकताहट भरे लहजे में इससे टोका। मैंने तुम्हें फ़ोन अपने मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए नहीं किया है, मैं सिर्फ एक ख़तरे से आगाह करना चाहता हूँ
किस खतरे से? हसन चौंका। तुमने जो वकील हायर किया था वो इसके जरिए तुम तक और फिर मुझ तक बआसानी पहुंच सकते हैं, सलार ने इससे कहा। नहीं, वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते। हसन ने इसकी बात पर कदरे लापरवाही से कहा। क्यों? क्योंकि मैंने सारा काम पहले ही बहुत मोहतात होकर किया है। वो वकील भी मेरे असली नाम और पते से वाकिफ नहीं है। इसे जो एड्रेस और फोन नंबर मैंने दिया था वो जाली था। सलार बेख्तियार मुस्कुराया। इसे हसन से ऐसी अक्लमंदी और चालाकी की तवक्को रखनी चाहिए थी। वो हर काम बड़ी सफाई से सरअंजाम देने का माहिर था। मैं सिर्फ इसके पास एक बार गया था, फिर फोन पर ही राब्ता किया और इस मुलाकात में भी मेरा हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं नहीं समझता कि सिर्फ हुलिये से हाशिम मुबीन अहमद मुझ तक पहुंच सकते हैं, और अगर वो ना पहुंच गए तो पता नहीं। इस तो के बारे में मैंने नहीं सोचा। हसन ने साफ गोई से कहा। क्या यह बेहतर नहीं है कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं गायब हो जाओ और यूं जाहिर करो कि जैसे तुम्हारी ये गैर मौजूदगी कुछ जरूरी कामों के लिए थी? सालार ने इसे मशवरा दिया। इससे बेहतर मशवरा भी मेरे पास है। मैं इस वकील को कुछ रुपए पहुंचाकर ये हिदायत दे देता हूँ कि हाशिम मुबीन या पुलिस के पहुंचने पर वो इन्हें मेरा गलत हुलिया बताए। कम अज कम इस तरह फौरी तौर पर मैं किसी परेशानी का शिकार नहीं होऊंगा। और इन्हीं दिनों में वैसे भी मैं चंद हफ्तों के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ, हसन ने बताया। पुलिस अगर पहुंच भी गई तो तब भी मैं की पहुंच से बहुत दूर रहूंगा, मगर मुझे यकीन नहीं है कि वो मुझ तक पहुंच सकेंगे। इसलिए तुम इत्मीनान रखो। अगर तुम वाकई इतने बेफिक्र और मुतमईन हो तो ठीक है, हो सकता है वो तुम तक ना आए, मगर मैंने भी फिर सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। सालार ने फोन बंद करते हुए इससे कहा। वैसे तुम इस लड़की को अब लाहौर में कहाँ छोड़ कर आए हो? लाहौर की एक सड़क पर छोड़ आया हूँ, और इसके अलावा और कहाँ छोड़ सकता था? इसने अपने मेले वकूफ और हदूद अरबा के बारे में कुछ नहीं बताया। अजीब बेवकूफ़ हो, कम से कम तुम इससे इसका ठिकाना पूछने का हौसला रखते थे। हाँ, मगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। सालार ने दानास्ता मामा से आखिरी बार होने वाली अपनी गुफ्तगू गोल कर दी। मैं हैरान हूँ कि तुम अब किस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होने लगे हो। अपनी टाइप की लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होना दूसरी बात है, मगर वसीम की बहन जैसी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाना, तुम्हारा टेस्ट दिन ब दिन गिरता जा रहा है। मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ? तुम वाकई अकल से पैदल हो, वरना कम से कम इस तरह की बात मुझसे न करते। एडवेंचर और इन्वॉल्वमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है हसन साहब, सालार ने तंज़िया लहजे में कहा। और आपने ये फासला एक ही छलांग में तय कर लिया है सालार साहब। हसन ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं, और तुम्हारा दिमाग मुझसे ज़्यादा ख़राब है, वरना इस तरह की हमाकत को एडवेंचर कभी ना कहते। हसन भी कदरे झल्लाया हुआ था। अगर तुमने मेरी मदद की है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम कह दो। सालार को इसकी बात पर अचानक गुस्सा आ गया। अभी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है। तुम किस बात की तरफ इशारा कर रहे हो? ये टेस्ट वाली बात की तरफ या दिमाग खराब होने वाली बात की तरफ? हसन ने इसी अंदाज में इसकी बात से मुतासिर हुए बगैर कहा। अच्छा, अब मुंह बंद कर लो, फजूल बहस मत करो। इस वक्त इन तमाम बातों को करने का मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना है। हसन अब संजीदा था। फर्ज करो पुलिस किसी सूरत हम तक पहुंच जाती है और वो फिर अमामा का आता पता जानने की कोशिश करती है, तो हम क्या बताएंगे? और मैं नहीं समझता कि वो कभी भी इस बात पर यकीन करेंगे कि अमामा के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है। इस वक्त तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं करूँगा। मैं इनसे भी वही कहूँगा जो तुमसे कह रहा हूँ, इसने बुलंद आवाज़ में कहा। हाँ, और सारा मसला तुम्हारा इस बयान से ही शुरू होगा। मैं अमामा के बारे में नहीं जानता। एहसन ने इसका जुमला दोहराया। तुम्हें अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए कि वो हर कीमत पर अमामा तक पहुंचना चाहेंगे। ये बहुत बात की बात है। मैं इम्कानात और मुमकिनात पर गौर करके परेशान नहीं होता। जब वक्त आएगा देखा जाएगा, सालार ने लापरवाही से कहा। तो मुझसे सिर्फ ये मदद चाहिए कि तुम इस सारे मामले को राज ही रखो और पुलिस के हत्थे ना लगो। तुम्हारे कहे बगैर भी मैं यही करता। वैसे भी मैं अगर पकड़ा गया तो वसीम को मुंह को दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। इस बार तुमने मुझे वाकई बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल से दो चार किया है। ओके, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ क्योंकि तुम पर फिर वही दौरा पड़ने वाला है, वही नसीहतें हैं और वही पछतावा। यू आर एक्टिंग लाइक माई फादर। सालार ने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। इसका ज़हन पिछली रात के बारे में सोच रहा था और इसके माथे की तेवरियां और बल बहुत नुमायां थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये इस हद तक गिर जाएगा। रेड लाइट एरिया माई फुट, कभी मेरे ख़ानदान के पिछले 7 नस्लों से भी कोई वहाँ नहीं गया। और ये लड़का क्या है जो मैंने इसे नहीं दिया? क्या है जिसकी कमी रहने दी? और इसे देखो, कभी ये खुदकुशी की कोशिश करता फिरता है और कभी रेड लाइट एरिया। मेरे अल्लाह, आखिर किस हद तक जाएगा ये? सिकंदर उस्मान ने अपना सर थाम लिया। मुझे तो घर के मुलाजमों पर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ है। आखिर क्यों इस लड़की को उन्होंने अंदर आने दिया? घर के मामलात पर नज़र रखनी चाहिए इन्हें। तैयबा ने बात का मौजू बदलते हुए कहा। घर के मामलात और मालिक के मामलात पर नज़र रखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
यह मामला घर का नहीं था, मालिक का था, सिकंदर ने तंज़िए लहजे में कहा। और फिर इसमें से किसी ने भी किसी लड़की को यहाँ आते नहीं देखा। वो कहता है वो इसे इसी दिन लाया था। चौकीदार का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, इसने इसके साथ किसी लड़की को आते नहीं देखा। हाँ, जाते ज़रूर देखा है। मुलाजमों का भी यही कहना है, उन्होंने ना किसी को आते देखा है और ना ही जाते देखा है, सिकंदर ने कहा। इसका मतलब है कि वो यकीनन उस लड़की को अच्छी तरह छुपा कर लाया होगा। शैतानी दिमाग है इसका, ये तुम जानती हो। तुम सिर्फ ये दुआ करो कि सारा मामला ख़त्म हो जाए, हाशिम मुबीन की बेटी मिल जाए और हमारी जान छूट जाए, ताकि हम इसके बारे में कुछ सोच सकें। सिकंदर उस्मान ने कहा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी मुझे सज़ा ये मिल रही है। मेरी तो समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। वो बेहद बेबस नज़र आ रहे थे। वो अगले रोज़ सुबह मामूल के मुताबिक उठा और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा। नाश्ता करने के लिए वो डाइनिंग टेबल पर आया तो इसने खिलाफ़े मामूल वहाँ सिकंदर उस्मान को मौजूद पाया। वो आमतौर पर इस वक्त नाश्ता नहीं किया करते थे, ज़रा देर से फैक्ट्री जाया करते थे। सालार को इस वक्त इन्हें वहाँ मौजूद पाकर कुछ हैरत हुई, मगर इनके सुते हुए चेहरे और सुर्ख आंखों से अंदाज़ा हो रहा था कि शायद सारी रात नहीं सो सके। सालार को सुबह सुबह बाहर निकलने के लिए तैयार देखकर उन्होंने कदरे दुरुस्ती से इससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कॉलेज। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे गले में मुसीबत डालकर तुम खुद कॉलेज जा रहे हो? जब तक ये मामला ख़त्म नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता है कि तुम कितने ख़तरे में हो। कैसा ख़तरा? वो ठटका। मैं नहीं चाहता हाशिम मुबीन तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए फ़िलहाल तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम घर पर रहो, सिकंदर उस्मान ने दो टोक लहजे में कहा। इसकी बेटी मिल जाए फिर तुम दोबारा कॉलेज चले जाना। इसकी बेटी अगर 1 साल नहीं मिलेगी तो क्या मैं 1 साल तक अंदर बैठा रहूँगा? आपने इसे मेरे बयान के बारे में नहीं बताया, सलार ने तेज़ लहजे में कहा। मैं इसे बता चुका हूँ, सनिया ने भी तुम्हारी बात की तस्दीक कर दी थी। इनके लहजे में सनिया का नाम लेते हुए तलखी थी, मगर हाशिम मुबीन अभी भी मिस्र है कि इसकी बेटी को तुमने ही अगवा किया हुआ है। तो मैं क्या करूँ? इसे यकीन नहीं आता तो न आए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, सलार ने लापरवाही से कहते हुए नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? मुझे पड़ता है। तुम हाशिम मुबीन अहमद को नहीं जानते, वो कितने असर और रसूख वाला आदमी है और किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाज़ा सिर्फ मुझे है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए अभी तुम घर पर ही रहो, सिकंदर उस्मान ने इस बार कुछ नरम लहजे में कहा। शायद इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इनकी सख्ती का कोई असर नहीं होगा, वो इनकी बात नहीं मानेगा। पापा, मेरी स्टडीज़ का हर्ज होगा। सॉरी, मैं घर पर नहीं बैठ सकता। सलार सिकंदर उस्मान के लहजे की नरमी से मुतासिर नहीं हुआ था। तुम्हारा हर्ज होता है या नहीं, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें घर पर चाहता हूँ, समझे तुम? इस बार उन्होंने अचानक भड़क कर बुलंद आवाज़ में इससे कहा। कम अज़ कम आज तो मुझे जाने दें, आज बहुत ज़रूरी काम निपटाने हैं। सलार एकदम इनके गुस्से पर कुछ फिजल हुआ। तुम वो काम ड्राइवर को बता दो, वो कर देगा, ये फिर किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर लो, सिकंदर ने हतमी अंदाज में कहा। मगर पापा, अब मुझे इस तरह, सिकंदर उस्मान ने इसकी बात नहीं सुनी। वो ड्राइंग रूम से निकल रहे थे। वो कुछ देर बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाता रहा, फिर तंग आकर खामोश हो गया। वो जानता था कि सिकंदर उस्मान इसे बाहर निकलने नहीं देंगे, मगर इसी बात की तवक्को नहीं थी। इसका ख्याल था कि सनिया को सामने लाने पर इसकी अपनी फैमिली के साथ हाशिम मुबीन में भी मुतमईन हो जाएंगे और कम अज़ कम ये मुसीबत इसके कंधों से उतर जाएगी। मगर इसके लिए सिकंदर उस्मान का इंकशाफ हैरान कुन था कि हाशिम मुबीन ने अभी भी इसके बयान पर यकीन नहीं किया। सलार वहाँ बैठा नाश्ता करते हुए कुछ देर इन तमाम मामलात के बारे में सोचता रहा। कॉलेज ना जाने का मतलब घर में बंद हो जाना था और वो घर में बंद नहीं होना चाहता था। इसका मूड एकदम ऑफ हो गया। नाश्ता करते करते इसने इसे अधूरा छोड़ दिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। सिकंदर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो लाउंज में बैठे थे जब मुलाजमा कुछ झिझकते हुए इनके पास आई। हाँ कहो, पैसों की ज़रूरत है, सिकंदर उस्मान ने अखबार पढ़ते हुए कहा। वो इस मामले में खासे फराग दिल थे। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ आपसे। बोलो। वो हनूज अखबार में मुनहमिक थे। मुलाजमा कुछ परेशान होने लगी। नासरा ने बहुत सोच समझकर सलार और मामा के बारे में सिकंदर उस्मान को बताने का फैसला किया था, क्योंकि इसे ये सब कुछ अब बहुत परेशान कुन लग रहा था। वो नहीं चाहती कि जल्द या बदेर ये पता चल जाए कि इन दोनों के दरमियान राब्ते का जरिया वो थी, फिर इसे इसके सारे पूरे ख़ानदान को पुलिस का सामना करना पड़े। इसीलिए वो अपने शौहर से मशवरे के बाद इसने सिकंदर उस्मान को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था, ताकि कम अज़ कम वो दोनों घर वालों में से किसी एक की हमदर्दी अपने साथ रखे। चुप क्यों हो, बोलो, सिकंदर उस्मान ने इसे खामोश पाकर एक बार फिर इससे कहा। इनकी नज़रें अभी भी अखबार पर जमी हुई थी।
सिकंदर साहब, मैं आपको सालार साहब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, नासरा ने बिलआखिर एक तवील तवक्कुफ के बाद कहा। सिकंदर उस्मान ने बेख्तियार अखबार अपने चेहरे के सामने से हटाकर देखा। सालार के बारे में क्या कहना चाहती हो? उन्होंने अखबार को सामने सेंटर टेबल पर फेंकते हुए संजीदगी से कहा। सालार साहब और अमामा बीबी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सिकंदर उस्मान का दिल बेख्तियार उछलकर हलक में आ गया। क्या? बहुत दिन पहले एक दिन सालार साहब ने मुझसे कहा था कि मैं इनका मोबाइल अपनी बेटी को हाथ अमामा बीबी को पहुंचा दूं। सिकंदर उस्मान को लगा दोबारा कभी हिल नहीं सकेंगे। तो हाशिम मुबीन अहमद का ख्याल और इसरार ठीक था। इनके बदतरीन कयास और अंदाजे दुरुस्त थे। फिर इन्हें अपनी आवाज़ किसी खाई से आती लगी। मैंने इनकार कर दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकती, मगर उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने कहा कि वो मुझे घर से निकाल देंगे, जिस पर मजबूरन मैं वो मोबाइल अमामा बीबी तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गई। अपनी पोजीशन को महफूज रखने के लिए नासरा ने अपने बयान में झूठ की आमेज़श करते हुए कहा। फिर इसके कुछ दिन बाद एक दिन सालार साहब ने कहा मैं कुछ कागजात अमामा बीबी तक पहुंचाऊं और फिर इसी वक्त इन कागजात को वापस ले आऊं। मैंने अपनी बेटी के जरिए वो कागजात भी अमामा बीबी के पास पहुंचाकर वापस मंगवा लिए और सालार साहब को दे दिए। मैंने सालार साहब से इन कागजात के बारे में पूछा, मगर उन्होंने नहीं बताया। मगर मुझे शक था कि शायद वो निकाहनामा था, क्योंकि इस वक्त सालार साहब के कमरे में 5 लोग मौजूद थे। इनमें से एक कोई मौलवी भी था। सिकंदर उस्मान को वहां बैठे बैठे ठंडे पसीने आने लगे थे। और ये कब की बात है? अमामा बीबी के जाने से चंद दिन पहले, नासरा ने कहा। तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? सिकंदर उस्मान ने दुरुस्त लहजे में कहा। मैं बहुत खौफजदा थी साहब जी। सालार साहब ने मुझे धमकियां दी थी कि अगर मैंने आपको या किसी और को इस मामले में बारे में बताया तो वो मुझे यहाँ से बाहर फेंकवा देंगे, नासरा ने कहा। वो कौन लोग थे? इन्हें पहचानती हो? सिकंदर उस्मान ने बेहद इस्तिराब के आलम में कहा। बस एक को, हसन साहब थे। इसने सालार के एक दोस्त का नाम लिया। बाकी और किसी को मैं नहीं पहचानती, नासरा ने कहा। मैं बहुत परेशान थी, आपको बताना चाहती थी मगर डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मगर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और कौन कौन इसके बारे में जानता है? सिकंदर उस्मान ने कहा। कोई भी नहीं, बस मेरी बेटी और मेरा शौहर, नासरा ने जल्दी से कहा। मुलाजमों में से किसी और को कुछ पता है? तौबा करें जी, मैं क्यों किसी को कुछ बताती? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तुमने जो कुछ किया इसके बारे में तो मैं तुम्हें बाद में तय करूंगा, मगर फिलहाल तुम एक बात अच्छी तरह ज़हननशीं कर लो, तुम किसी को भी इस सारे मामले के बारे में नहीं बताओगी। अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर लो, वरना इस बारे में ना सिर्फ तुम्हें वाकई इस घर से निकाल दूंगा, बल्कि हाशिम मुबीन और पुलिस से कह दूंगा कि ये सब कुछ तुमने करवाया। तुमने इन दोनों को गुमराह किया था और तुम ही इन दोनों के पैगामात एक दूसरे तक पहुंचाती रही। फिर पुलिस तुम्हारे साथ और तुम्हारे खानदान के साथ क्या करेगी तुम्हें याद रखना चाहिए। तुम्हारी सारी उम्र जेल के अंदर ही गुजर जाएगी। वो गुस्से के आलम में से धमका रहे थे। नहीं साहब, मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगी? आप मेरी जबान कटवा दीजिएगा अगर मेरे मुंह से दोबारा इसके बारे में कुछ भी सुने। नासरा घबरा गई, मगर सिकंदर उस्मान ने रुखाई के साथ इसकी बात काट दी। बस काफी है, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, उन्होंने इसे जाने का इशारा करते हुए कहा। सिकंदर उस्मान परेशानी के आलम में इधर उधर टहलने लगे। इस वक्त इनके सर पर वाकई आसमान टूट पड़ा था और इस वक्त इन्हें पहली बार सालार के हाथों बेवकूफ़ बनने का एहसास हो रहा था। वो किसी ढिठाई और महारत और बेहूदगी से इनसे झूठ पर झूठ बोलता और इन्हें धोखा देता गया था और इन्हें इसका एहसास तक नहीं हो सका था। और अगर मुलाजमे ने ये सब कुछ ना बताती तो वो अभी भी टांग पर टांग रख के मुतमईन बैठे होते, यही सोच कर कि सालार अमामा के साथ इन्वॉल्व नहीं है और न ही इसकी गुमशुदगी में इसका कोई हिस्सा था। वो चंद दिन घर पर रहकर एक बार फिर कॉलेज जाना शुरू हो चुका था। वो जानते थे कि सालार की निगरानी करवाई जा रही थी और हाशिम मुबीन अहमद को सब कुछ पता चलने का मतलब क्या था वो अच्छी तरह जानते थे। इनका कुछ देर पहले का इत्मीनान एकदम खत्म हो गया था। वो अंदाजा कर सकते थे कि वो कागजात कैसे थे, इन 5 आदमियों की मौजूदगी का मतलब क्या था, सालार और अमामा के दरमियान ताल्लुकात की नौयत क्या थी। और वो इस वक्त इनका दिल चाह रहा था कि वो इसका गला दबा दें या फिर इसे शूट कर दें, मगर वो जानते थे वो ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। सालार सिकंदर इनका वो बेटा था जिससे वो अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे और इस तरह बेवकूफ़ बनने के बाद पहली बार वो सोच रहे थे कि वो अब सालार सिकंदर की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो इसे मुकम्मल तौर पर हम मामले में अंधेरे में रखेंगे, वैसे ही जैसे वो कर रहा था। इसकी अमामा से जान पहचान कैसे हुई? सिकंदर उस्मान ने अपने घर में बेचैनी से टहलते हुए तैयबा से पूछा। मुझे क्या पता इसकी जान पहचान अमामा से कैसे हुई, कोई बच्चा तो है नहीं कि मेरी उंगली पकड़ कर चलता हो, तैयबा ने कदरे खफगी से कहा।
میں نے تم سے بہت بار کہا تھا کہ اس بار نظر رکھو، مگر تمہیں اپنی ایکٹیویٹیز سے فرصت ملے تو تم کسی اور کے بارے میں سوچو۔ اس پر توجہ دینا صرف میرا ہی فرض کیوں ہے؟ طیبہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ آپ کو بھی تو اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دینی چاہیے، سارا الزام میرے ہی سر کیوں؟ میں تم کو کوئی الزام نہیں دے رہا، اور اس بحث کو ختم کرو۔ امامہ کے ساتھ شادی، تم اندازہ کر سکتے ہو ہاشم مبین کو جب اس تعلق کا پتہ چلے گا تو کیا تماشا کھڑا کریں گے؟ مجھے یہ سوچ کر شوق لگ رہا ہے کہ اس نے ایسی حرکت کرنے کا سوچا کیسے؟ اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ ہماری اور ہماری فیملی کی سوسائٹی میں کتنی عزت ہے۔ سکندر عثمان طیبہ کے قریب صوفے پر بیٹھے ہوئے بولے، ایک پرابلم ختم ہوتی ہے تو ہمارے لیے دوسری پرابلم شروع کر دیتا ہے۔ یہ سارا چکر اسی وقت شروع ہوا ہوگا جب پچھلے سال اس نے خود خوشی کی کوشش کے بعد اس کی جان بچائی تھی۔ ہم بے وقوف تھے کہ ہم نے اس معاملے پر نظر نہیں رکھی، ورنہ شاید یہ سب بہت پہلے سامنے آ جاتا۔ سکندر عثمان اپنی کنپٹی مسلتے ہوئے کہنے لگے، اور یقیناً یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ اپنی مرضی سے انوالو ہوئی ہوگی، ورنہ اس طرح کوئی کسی کے ساتھ مرضی کے خلاف تو نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ہاشم مبین احمد کو دیکھے، وہ یوں شور مچا رہا ہے جیسے اس کی بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جو کیا ہے سالار نہیں کیا ہے، انہوں نے تو FIR بھی اغوا کی درج کروائی ہے۔ طیبہ نے نئے سرے سے سلگنے لگی، جو بھی ہے قصور تمہارے بیٹے کا ہے، نہ وہ ایسے کاموں میں پڑتا، اس طرح پھنستا۔ اب تو تم صرف یہ سوچو کہ تمہیں اس صورتحال سے کس طرح بچنا ہے۔ ابھی ہم اتنی بری طرح نہیں پھنسے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ اس پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا، پولیس یا ہاشم مبین احمد کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ثبوت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جس دن ان تک کوئی ثبوت پہنچ گیا اس دن کیا ہوگا تم نے یہ سوچا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا، آپ پھر امکانات کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہوا تو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ہو بھی نہ۔ اس نے اگر ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک اور دھوکہ یہ ہو کہ اس کا رابطہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہو۔ سکندر عثمان کو خیال آیا، ہاں ہو سکتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ میں اس سے بات کروں گا تو سمجھو پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑوں گا، وہ پھر جھوٹ بول دے گا، اور جھوٹ بولنے میں تو وہ ماہر ہو چکا ہے۔ انہوں نے تنفر آمیز لہجے میں کہا، بس چند ماہ میں اس کا BA مکمل ہو جائے گا، پھر میں اسے باہر بھجوا دوں گا۔ کم از کم ہر وقت ہاشم مبین کی طرف سے جن اندیشوں کا شکار رہتا ہوں وہ تو ختم ہوں گے۔ انہوں نے سگریٹ کا ایک کش لگایا، مگر آپ ایک چیز بھول رہے ہیں سکندر۔ طیبہ نے بڑی سنجیدگی سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، کیا؟ سکندر نے انہیں چونک کر دیکھا، سالار کی امامہ کے ساتھ خفیہ شادی۔ اس شادی کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس شادی کے بارے میں؟ طلاق کے علاوہ اس شادی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ سکندر عثمان نے قطعی لہجے میں کہا، وہ شادی ماننے پر تیار نہیں ہے تو طلاق دینے پر رضامند ہو جائے گا۔ جب میں اسے ثبوت پیش کروں گا تو اسے اپنی شادی کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا، اور اگر شادی کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس نے امامہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اور وہ میں نکال لوں گا، چاہے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا پھر مجھے زبردستی کرنا پڑے۔ میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا۔ اس طرح کی شادی انسان کو ساری عمر خوار کرتی ہے، اس سے تو پیچھا چھڑانا ہی پڑے گا، ورنہ میں اسے اس بار مکمل طور پر اپنی جائیداد سے کر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سکندر عثمان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ حسن کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تھا جب اچانک اسے اپنے والد کی کال ملی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا، مگر حسن نے توجہ نہیں دی۔ لیکن جب 15 منٹ بعد اپنے گھر پہنچا تو پورچ میں کھڑی سکندر عثمان کی گاڑی دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ وہ سالار کے گھر کی تمام گاڑیوں اور ان کے نمبرز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ سکندر انکل کو میرے اس معاملے میں انوالو ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ سالار کا دوست سمجھ کر پوچھ گچھ کے لیے آئے ہوں گے۔ میں بڑے اطمینان سے ان کی باتوں کا جواب دوں گا اور کسی بھی الزام کی تردید کر دوں گا، لیکن میری پریشانی پاپا کے سامنے میری پوزیشن مشکوک کر دے گی، اس لیے انکل سکندر کو دیکھ کر مجھے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے پہلے اپنا لائحہ عمل طے کیا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہو گیا۔ اس کے والد قاسم فاروقی اور سکندر عثمان کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی اور اضطراب وہ ایک لمحے میں بھاپ گئے تھے۔ کیسے ہیں انکل سکندر آپ؟ اس بار بہت دنوں کے بعد آپ ہماری طرف آئے۔ باوجود اس کے کہ سکندر یا قاسم نے اس کے ہیلو کا جواب نہیں دیا، حسن نے بہت بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ اسے اس بار بھی جواب نہیں ملا۔ سکندر عثمان اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھو، قاسم فاروقی نے قدرے درستی سے کہا۔
सिकंदर तुमसे कुछ बातें पूछने आया है। तुम्हें हर बात का ठीक ठीक जवाब देना है। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं सिकंदर उस्मान से कह चुका हूँ कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दे। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। तुम्हें किसी भी तरह बचाने की कोशिश नहीं करूंगा। कासिम फारूकी ने इसके बैठते ही बिना तमहीद कहा, पापा आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझा। हसन ने हैरत का मुजाहरा किया, मगर इसका दिल धड़कने लगा था। मामला इतना सीधा नहीं था जितना इसने समझ लिया था। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सिकंदर पूछो इससे क्या पूछना चाहते हो, और मैं देखता हूँ ये कैसे झूठ बोलता है। अमामा के साथ सालार की शादी में शिरकत की है तुमने? अंकल आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी शादी? कैसी शादी? हसन ने मजीद हैरत का मुजाहरा किया। वही शादी जो मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर पर हुई, जिसके लिए अमामा को पेपर्स भिजवाए गए थे। प्लीज अंकल, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपके घर में जरूर आता जाता रहता हूँ, मगर मुझे सालार की किसी शादी के बारे में कुछ पता नहीं है, और ना ही मेरी मालूमात के मुताबिक इसने शादी की है। मुझे तो इस लड़की का भी पता नहीं है जिसका आप नाम ले रहे हैं। हो सकता है सालार के किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट हो, मगर मैं इसके बारे में नहीं जानता। वो हर बात मुझे नहीं पता था। सिकंदर उस्मान और कासिम फारूकी खामोशी से इसकी बात सुनते रहे। वो खामोश हुआ तो सिकंदर उस्मान ने अपने सामने पड़ा हुआ एक लिफाफा उठाया और उसमें मौजूद चंद कागज निकालकर इसके सामने रख दिए। हसन का रंग पहले ही बार उतरा। वो अमामा और सालार का निकाहनामा था। इस पर देखो, तुम्हारे ही सिग्नेचर हैं। सिकंदर ने सख्त लहजे में पूछा। अगर ये सवाल इन्हें कासिम फारूकी के सामने न किया होता तो इन दस्तखत को अपने दस्तखत मानने से इनकार कर देता, मगर इस वक्त वो ऐसा नहीं कर सकता था। ये मेरे सिग्नेचर हैं, मगर मैंने नहीं किए, इसने हकलाते हुए कहा। फिर किसने किए हैं? तुम्हारे फरिश्तों ने या सालार ने? कासिम फारूकी ने तंजिया लहजे में कहा। हसन कुछ बोल नहीं सका। वो हवास बाख्ता सब बारी बारी इन्हें देखने लगा। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सिकंदर उस्मान इस तरह इसके सामने वो निकाहनामा निकाल कर रख देंगे। वो ये भी नहीं जानता था कि उन्होंने वो निकाहनामा कहाँ से हासिल किया था, सालार से या फिर इसकी सारी अक्लमंदी और चालाकी धरी की धरी रह गई थी। तुम ये नहीं मानोगे कि सालार का अमामा के साथ निकाह तुम्हारी मौजूदगी में हुआ है, कासिम फारूक ने उखड़े हुए लहजे में इससे कहा। पापा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये सब सालार की जिद पर हुआ था और इसने मुझे मजबूर किया था। हसन ने एकदम सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। कुछ भी छुपाने का अब कोई फायदा नहीं था। वो झूठ बोलता तो अपनी पोजीशन और खराब करता। मैंने इसे बहुत समझाया था, मगर कासिम फारूक ने इसकी बात काट दी। इस वक्त मैं यहाँ सफाइयाँ और वजाहतें पेश करने के लिए नहीं बुलाया। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस लड़की को इसने कहाँ रखा हुआ है। पापा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, हसन ने तेजी से कहा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। आई स्वेयर पापा, मुझे वाकई कुछ पता नहीं है। वो इसे लाहौर छोड़ आया था। ये झूठ तुम किसी और से बोलना, मुझे सिर्फ सच बताओ। कासिम फारूकी ने एक बार फिर इसे तंद तेज लहजे में कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा पापा, हसन ने एहतजाज किया। लाहौर कहाँ छोड़ आया था? किसी सड़क पर। इसने कहा था वो खुद चली जाएगी। तो मुझे या सिकंदर को बेवकूफ़ समझ रहे हो? इसने इस लड़की से शादी की और फिर इसे एक सड़क पर छोड़ दिया। बेवकूफ़ मत बनाओ हमें, कासिम फारूकी भड़क उठे। मैं सच कह रहा हूँ पापा, इसने कम से कम मुझसे यही कहा था कि उस लड़की को सड़क पर छोड़ाया था। तुमने इससे पूछा नहीं कि फिर इसने इस लड़की के साथ शादी क्यों की, अगर इसे यही करना था? पापा, इसने ये शादी इस लड़की की मदद के लिए की थी। इसके घर वाले जबरदस्ती इसकी शादी किसी लड़के से करना चाहते थे। वो नहीं करना चाहती थी। इसने सालार से राब्ता किया और मदद मांगी, और सालार इसकी मदद पर तैयार हो गया। वो सिर्फ ये चाहती थी कि सालार वक्ती तौर पर इससे निकाह कर ले, ताकि अगर इसके वालिदैन जबरदस्ती इसकी शादी करना चाहें तो वो इस निकाह को बताकर इन्हें रोक सके। हसन अब सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकता था। इसने पूरी बात बताने का फैसला किया, और अगर जरूरत पड़े तो बेलेफ के जरिए इसको रिहाई दिलवाई जा सके। मगर ये कोई मोहब्बत वगैरह की शादी नहीं थी। वो लड़की वैसे भी किसी और लड़के को पसंद करती थी। अब इस निकाहनामे को देखें तो इसमें भी इसने तलाक का हक पहले ही लिया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो सालार से राब्ता किए बगैर ही तलाक हासिल कर ले, बस, या कुछ और। कासिम फारूकी ने इससे कहा। हसन कुछ नहीं बोला, खामोशी से इन्हें देखता रहा। मैं कतन तुम्हारी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं हूँ। तुमने बहुत अच्छी कहानी बनाई है, मगर मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि इस कहानी पर यकीन कर लूँ। तुम्हें अब अमामा तक पहुँचने में सिकंदर की मदद करनी है, कासिम फारूकी ने कतई लहजे में कहा। पापा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, हसन ने एहतजाज किया। तुम ये कैसे करोगे, ये तुम खुद जान सकते हो। मुझे सिर्फ ये बताना था कि तुम्हें क्या करना है।
पापा प्लीज आप मुझ पर यकीन करें, मैं अमामा के बारे में कुछ नहीं जानता। निकाह करवाने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। हसन ने कहा, तुम इसके इतने करीब हो कि अपनी खुफिया शादी में वो तुम्हें गवाह के तौर पर ले रहा है, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि इसकी बीवी घर के से भागने के बाद अब कहाँ है। मैं ये मानने पर तैयार नहीं हूँ हसन, किसी सूरत में भी नहीं, कासिम फारूकी ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम्हें अगर पता नहीं है तो भी तुम इसका पता कराओ कि वो कहाँ है। सालार तुमसे कुछ नहीं छुपाएगा। पापा वो बहुत सी बातें मुझे भी नहीं बताता। वो सब बातें तुम्हें बताता है या नहीं, मैं फिलहाल सिर्फ एक चीज में दिलचस्पी रखता हूँ, वो अमामा के बारे में मालूमात है। तुम हर तरीके से इससे अमामा का पता हासिल करो और सालार को किसी भी तरह ये पता नहीं चलना चाहिए कि सिकंदर को इसकी शादी की इत्तला मिल चुकी है या इसने इस सिलसिले में तुमसे कोई मुलाकात की है। अगर मुझे ये पता चला कि सालार ये बात जान गया है तो मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा, ये तुम्हें याद रखना चाहिए। मैं सिकंदर को तो पहले ही इजाज़त दे चुका हूँ कि वो हाशिम मुबीन को तुम्हारा नाम दे दे। इसके बाद हाशिम मुबीन तुम्हारे साथ पुलिस के जरिए निपटे या किसी और तरीके से, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूँगा। अब तुम ये तय कर लो कि तुमने सालार के साथ दोस्ती निभानी है या फिर इस घर में रहना है। कासिम फारूकी ने कतई लहजे में कहा। पापा मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह अमामा के बारे में कुछ मालूमात मिल जाए। मैं सालार से इसके बारे में बात करूंगा। मैं इसे ये नहीं बताऊंगा कि सिकंदर अंकल को इस सारे मामले के बारे में पता चल गया है। वो बेकानिकी के अंदाज में दोहराता जा रहा था। वो इस बार वाकई बुरी तरह और खिलाफ तवक्का फंसा हुआ था। सालार चंद दिन घर बैठा रहा था मगर फिर जिद करके इसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हाशिम मुबीन और इसके घर वाले अमामा की तलाश में जमीन आसमान एक किए हुए थे। अगरचे वो ये सब कुछ बड़ी राजदारी के साथ कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इनके मुलाजमीन और पुलिस के जरिए सिकंदर को इनकी कोशिशों की खबर मिल रही थी। वो लाहौर में भी अमामा की हर सहेली से राब्ते कर रहे थे जिसे वो जानते थे। सलाह ने एक दिन अखबार में बाबर जावेद नामी एक शख्स का खाका देखा। इसके बारे में मालूमात देने वाले के लिए इनाम का ऐलान था। वो इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ था। यही वो फर्जी नाम था जो हसन ने वकील को अमामा के शोहर को दिया था और वो इश्तेहार यकीन अमामा के घर वालों की तरफ से था। हालांकि नीचे दिए गया फोन नंबर अमामा के घर का नहीं था। वो अंदाजा कर सकता था कि पुलिस इस वकील के पास पहुंच गई होगी और इसके बाद इस वकील ने इस आदमी के कवायफ इन्हें बताए होंगे। अब यह हकीकत सिर्फ वो वकील हसन और खुद वो जानता था कि बाबर जावेद सिरे से कोई वजूद नहीं रखता, मगर वो मुतमईन हो गया था। वो हाशिम मुबीन के घर वालों को किसी हद तक भटकाने में कामयाब रहा था। इस पूरे अरसे के दौरान सालार अमामा की कॉल का इंतजार इसने कई बार अमामा को इसके मोबाइल पर कॉल भी किया मगर इसे मोबाइल ऑफ मिलता। इससे ये तजस्सुस हो रहा था कि वो कहाँ थी। इस तजस्सुस को हवा देने में कुछ हाथ हसन का भी था जो बार बार इसे अमामा के बारे में पूछता रहता था। बाज दफ़ा वो चिढ़ जाता, मुझे क्या पता वो कहाँ है, मुझसे राब्ता क्यों नहीं कर रही। बाज दफ़ा मुझे लगता है इसे मुझसे ज़्यादा तुम्हें दिलचस्पी है। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हसन का यह तजस्सुस और दिलचस्पी किसी मजबूरी की वजह से थी। वो बुरी तरह फंसा हुआ था। सालार का ख्याल था कि अमामा अब तक जलाल के पास जा चुकी होगी और हो सकता है वो इससे शादी भी कर चुकी हो। और अगरचे इसने अमामा से जलाल की शादी के बारे में झूठ बोला था मगर इसे यकीन था कि अमामा ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया होगा। वो इसके पास दोबारा ज़रूर गई होगी। खुद सालार भी चाहता था कि वो खुद जलाल से राब्ता कायम करे या फिर ज़ाती तौर पर जाकर एक बार इससे मिले। वो जानना चाहता था कि अमामा इसके साथ रह रही है या नहीं, मगर फिलहाल ये दोनों काम इसके लिए नामुमकिन थे। सिकंदर उस्मान मुसलसल इसकी निगरानी करवा रहे थे और वो इस बात से भी वाकिफ था कि वो ये निगरानी करवाने वाले वाहिद नहीं हैं। हाशिम मुबीन अहमद भी यही काम करवा रहे थे और अगर वो लाहौर जाने का इरादा करता था तो अव्वल तो सिकंदर उस्मान इसे जाने ही नहीं देते और बिलफर्ज जाने की इजाज़त दे भी देते तो शायद खुद भी इसके साथ चल पड़ते और वो ये नहीं चाहते थे। वो वक्त गुजरने के साथ साथ इस तरह मामले में इसकी दिलचस्पी कम से कम होती जा रही थी। इसे अब ये सब कुछ एक हमाकत लग रहा था, ऐसी हमाकत जो इसे काफ़ी महंगी पड़ रही थी। सिकंदर और तैयबा अब हमा वक्त घर पर रहते थे। इसे कहीं भी जाने के लिए इसे बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती थी। हसन अब इससे कम मिलने लगा था और वो इसकी वजह भी नहीं जानता। वो इस रात कंप्यूटर पर बैठा था जब इसके मोबाइल पर एक कॉल आई थी। इसने कीबोर्ड पर हाथ चलाते हुए लापरवाही से मोबाइल उठाकर देखा और फिर इससे एक झटका लगा था। स्क्रीन पर मौजूद नंबर इसके अपने मोबाइल का था। अमामा इसे कॉल कर रही थी।
دوستوں کہانی ابھی جاری ہے، کہانی ایک بہترین موڑ پر ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔